essay, analytical essay, critical essay, and argumentative essay. Out of these four kind of essays, the two essays type which I have circled, they are the most important. They appear mostly in the competitive exams. First of all, we should know what is a descriptive essay. By the word describe, we can understand the definition of descriptive essay. The essay which is for the purpose of describing a phenomenon will be called descriptive essay. You have to describe something. A descriptive essay is the basic type of essay. As we started writing essays from class 6, what was kind of popular at that time? My favorite teacher, my best teacher, my best friend, my school, my village, my pen. These were the sort of topics. So if I just take one example, my best friend, what happens? What you are supposed to do and what you are actually do write down. What do you write down? You write down the description of your friend. Right? So it is all description which you give about your friend. If there is a school, you describe the school. What you will describe? You will describe the structure, you will describe the ground, playground, if they are present, if there is an assembly hall, you will describe it, how it is constructed, how many rooms are there, is there any separate block for admin or separate block for academic purposes. So how you will describe that school, and then faculty members, teachers, and then activities which are conducted apart from educational classes. Educational classes we will also talk about, and other co-curricular activities you will describe which happen in school. So it is all descriptive, you will describe. Right. So descriptive essay is based on certain topics which appeal just the description of something, and it could be just imaginary. What do I mean by imaginary? Imaginary means there is no need to be factual material. There can be an ideal school, there can be an ideal friend, there can be an ideal village, there can be an ideal city. Because you are not going to be bound to a certain specific situation where you have to just quote facts and figures. If even you quote facts and figures, that is another case. But in descriptive essays, you are just describing something which could be an ideal position. Fine? And if you associate with yourself, of course, then you have to say the real life situation. But if you don't associate that topic with your life, then it would be just imaginary in an ideal position. Okay, what is now analytical and what is the major difference between descriptive essay and analytical essay? The major difference is that analytical essays compulsory based on facts and figures. Analytical is taken from the word analyze. And analyze means तज्जिया. तज्जिया हम उर्दू में कहते हैं तज्जिया करना. लेकिन अगर तज्जिया करने का भी मतलब हम देखें, तज्जिया करना कहते किसे? डिस्क्राइब करना तो कोई भी चीज़ आपने डिस्क्राइब कर दी, इस रूम को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इधर मौजूद हैं, और एक आइडियल कॉन्फ्रेंस हॉल को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं माई कॉन्फ्रेंस हॉल और जस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल, दैट वुड बी डिस्क्रिप्शन. लेकिन एनालिसिस का जैसे मतलब हम तज्जिया करना कहते हैं, तो तज्जिया करना से मुराद क्या है? जायजा लेना. तो इस इसका मतलब है कि तज्जिया करने में एनालिटिकल एस्पेक्ट्स में यस हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑब्जर्वेशन.
ठीक है, लेकिन ये एक स्टेप होगा इसका, इट विल बी जस्ट वन स्टेप ऑफ द एनालिसिस एंड दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप। एंड ऑब्जर्वेशन किस पे होगी? फैक्ट्स एंड फिगर्स। एनालिसिस हो गई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। ओके, हमने कहा ऑब्जर्व करना या ऑब्जर्वेशन देना। क्या आपने कभी देखा है तज्जिया का जो मार्कर्स है वो कौन सा वर्ड है? जुज से ही तज्जिया ना, और जुज किसे कहते हैं? पार्ट। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है उसके सर्टेन पार्ट्स को एनालाइज करते हो कि फला चीज है तो उसका क्या रोल हो सकता है। जैसे इवन इस रूम के अंदर अगर हम एनालिसिस करें तो इसके मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए जा सकते हैं कि एक पोर्शन वो है जो स्पीकर के लिए है, जहाँ पे टीचर की पोजीशन है, वो सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पे बोर्ड भी है, हर एक बंदे की का फोकस भी इधर है। तो एक ये पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट है। तीसरा पार्ट ये है कि जो इधर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज में जितनी भी चीज़ें इधर लाइट्स हैं या यहाँ पे जो फैन है या जो फैसिलिटी बैठने की है, सोफा सेटिंग है, एवरीथिंग इज देयर। So you can, what you will start analyzing the things in specific portions and parts. Is it right? Okay. Then you also have your own perception. You can say something is better or something is not better and how it could be improved. That also is the part of analysis. जब आप टीवी पे तज्जिया कर आते हैं तो वो क्या बता रहे होते हैं? एक कोई भी इशू को लेके जो रियल लाइफ इशू है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को देख के उसको पार्ट्स में डिवाइड करके और हर पार्ट की रियलिटी क्या है और उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता। सो यू कैन से दैट एनालिसिस इज very much systematic. It is different from just description. Why? Because in description the things can be just imaginary, but here the real life factual things are there which you have observed. Of course every essay writer gives his observation. वो गलत को सही हो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से ट्रूथ समझ के नहीं लिख रहा हो। So in analysis there is the difference between descriptive and analytical essay. Okay, so observation is one part, and then division of different elements is another part. Then judgment of different parts, whether they are up to the mark or below the standard. And your perception in the form of suggestion. It is all the process of analysis. Okay, now we'll talk about what is a critical essay. Critical essay, of course, which is not there in your you can say pattern of competitive exams. लेकिन होता क्या है ये? अभी हमें पता हो कि हमने critical writing करनी है, और critical writing में ये चीज़ें होती हैं, कहीं एनालिटिकल करते हुए आप critical writing ना करना शुरू कर दें, so that we should also know about it. वैसे तो ये वर्ड क्रिटिसिज्म से ही है, to criticize ये कब होता है? ये लिटरेचर में ज़्यादा होता है। ड्रॉबैक्स निकालें, लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई अच्छी चीज़ें भी हम निकाल लें तो वो भी उसका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। अगर हाँ जैसे सोशल टॉपिक्स होता है उसमें हमने पहले कोई उसके माइनस या नेगेटिव चीज़ें हम बयान की तो उसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो बयान करके हमने अपनी फाइंडिंग्स देखनी है। अच्छा, ये जो अभी तीनों चीज़ें आपने बातें की कि पॉजिटिव भी देखनी, नेगेटिव भी देखनी और उसके बाद अपने सजेशन देंगे, लेकिन वो क्या होगा? सोशल मैटर होगा। जो अगर ये सोशल मैटर है, रियल लाइफ का मैटर है, तो ये सारा कुछ हम एनालाइज ही कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ जाए, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाए, फिर भी वो क्या है? हमारा एनालिसिस ही है। क्रिटिकल राइटिंग बेसिकली इज डन ऑन द वर्क्स ऑफ अदर्स, ऑन द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। आप एक किताब पढ़ते हैं
और किताब पढ़ने के बाद उस किताब के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे सर ये फिलोसफर्स ने किया हुआ है, जैसे फिलोसफर वो क्रिटिकल सारी ये प्रोसेस होता है, वो किसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो पिछले लोगों ने काम किया होता है उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म करें। एक पोइम है ना, पोइम ले ली और उस पोइम में देखा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखे, पॉजिटिव से क्या हुआ, टेक्निकल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस इस्लाम पोइट ने अगर एपिक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है तो किस हद तक फॉलो किया है। एक एपिक पोइम लिखी जाती है और उसके रूल्स जो एक सिस्टमैटिक है, उसका पहला रूल ये है कि द स्टार्ट ऑफ एपिक शुड बी प्रेइंग टू डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस फॉर द हेल्प। अगर तो पोइट इसको फॉलो करता है और उसी अंदाज में ही फॉलो करता है जैसे पहले एपिक्स लिखी गई हैं, तो हम कहेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ एपिक। अगर नहीं करता, कुछ और चीज ले आता है, तो फिर हम कहते हैं देयर इज अ न्यूनेस। और लिटरेचर में न्यूनेस की वजह से ही इम्प्रूवमेंट आ रही हो। ओके, तो ये बहुत सारी बुक्स लिखी गई होती हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया होता है। आप डॉन न्यूज़पेपर अगर संडे का खरीदें तो उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ इस चीज़ से डील करता है कि फलां बुक मार्केट में आई है और किसी राइटर ने उस बुक को पढ़ के उसके ऊपर सारी अपनी जजमेंट दी, उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, so the purpose of criticism is of course improvement and food for thought for the further writers to add some positive aspects which were missing in the previous writing. So you can say that critical essay or critical writing is done, it is done on the works of others. I will not actually circle it because it's not the part of now in your syllabus. Okay, जैसे आपको ग्रेजुएशन में जब आप मेजॉरिटी ऑफ यू आई थिंक डिड बीए एंड इन बीए एग्जाम्स आपको एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक स्टेंजा आता है पोइम में से या ड्रामा में से एक सिलेक्शन आती है कुछ डायलॉग्स की। वो बेसिकली करना ही क्या होता है, यही करना होता है। उसमें लिखा होता है गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये करना होता है। तो वो क्रिटिकल राइटिंग हो हमेशा, लेकिन ये हमारा पार्ट नहीं है। ओके, वेल नाउ कम टुवर्ड्स आर्गुमेंटेटिव एसे। यस, it is very important kind of essay because it's a part of your syllabus, as I also gave you one topic last time which was argumentative। आपके जो essays मुझे सबमिट हुए उनमें से more than 50% मैंने मार्क कर लिए, और जिन स्टूडेंट्स ने वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा था बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लग रहा था। There was nothing related to argumentative style। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे आप एक चीज़ को डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, उसमें आप कोई पोजीशन नहीं अडॉप्ट कर रहे, फिर आर्ग्यू ही नहीं डेवलप कर रहे। वैसे था कि जो सिचुएशन सोसाइटी में आप देख रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दैट आर्गुमेंटेटिव एसे, राइट। आर्गुमेंटेटिव एसे इज based on an issue। Okay, now we need to understand issue very carefully। Issue has different meaning। One meaning is issue means problem। Okay, issue means problem। Second meaning, issue, we issue the cards to the students, जारी कर देना, मतलब deliver कर देना। Listen, point of controversy। Okay, point of controversy, that is of course one idea। Conflict you can say। So one thing, एक step by step हम चलते हैं। One thing which you just said that to deliver, that is also the meaning of issue and point of controversy। तो जो ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे है वो प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा, वो ना ही कोई डिलीवर वाला मीनिंग है, बल्कि ये नहीं है। पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी को हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी कैन से देयर इज एन इशू।
आमतौर पर हम ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही हो तो सिर्फ इशू है। जैसे हम ये कह देंगे एनर्जी क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब ही प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन एनर्जी क्राइसिस टॉपिक अगर लिखा हो तो ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक नहीं है, ये एनालिटिकल ही टॉपिक है, आपने उसको एनालाइज ही करना है। तो हम जब प्रॉब्लम की बात करें, इशू का मतलब प्रॉब्लम यहाँ से मुराद नहीं ले रहे। व्हाट डू वी मीन बाय इशू? वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वेयर देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो वो होगा इशू। कंपेयर करेंगे। हाँ, जब ऑफ कोर्स एक आइडिया है वो एक अलग डायरेक्शन की तरफ जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, और दूसरा आइडिया दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको टॉपिक दिया कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन, यू कैन से यस and you can also say no. So it means if you say no, there can be alternative, there can be any other option for you. If there is no solution of democracy, what could be the other possible solution? And some of you can say yes, democracy is the solution. तो वहाँ में क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कोई प्रॉब्लम इशू या उस तरह का प्रॉब्लम इशू नहीं है जिसको हम कोई नेगेटिव फीचर लेते हैं कि वो भी सिर्फ प्रॉब्लम है। एनर्जी क्राइसिस है ना, इशू तो है, लोड शेडिंग है, वो भी इशू है, लेकिन वो कौन सा इशू है? नॉट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज इशू इन द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे कब बनेगा। अगर एनर्जी क्राइसिस टॉपिक आ गया या ये टॉपिक आ गया इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान, तो वो कोई आर्गुमेंटेटिव नहीं है, वो आपने क्या करना है, उसे एनालाइज ही करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करके उसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे, है तो वो भी प्रॉब्लम, लेकिन व्हाट वी आर टेकिंग हियर बाय आर्गुमेंटेटिव मींस वेयर देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। होपफुली इट इज क्लियर। तो आप ये देख लें, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए वहां पे हमारा आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाना है, एंड वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्गर पोजीशन, राइट। एनालिटिकल ऐसे जो होता है वो टू सम एक्सटेंट वी कैन राइट इन ऑब्जेक्टिव वे, वी कैन राइट इन ऑब्जेक्टिव स्टाइल। और जो आर्गुमेंटेटिव है ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इट मस्ट बी सब्जेक्टिव। और ये दो टर्म आपके सामने आई हैं, एक ऑब्जेक्टिव स्टाइल है और एक ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सुना होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर वो होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आपने लेंथ में लिखना होगा। लेकिन राइटिंग स्टाइल में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव राइटिंग इज दैट इन विच द राइटर्स पर्सनैलिटी इज नॉट इंक्लूडेड, and subjective writing is that in which writer's personality is included. So you can say that subjective writing is that which is personal. अगर आप ये कहते हो कि in my point of view, as far as my mind is concerned, democracy is a relative topic. For certain countries, it could be the best option for running a government, and in other countries, it could be a flawed system. Being a Pakistani, I would describe democracy in the conditions of Pakistan. And I believe that democracy has never given a good solution for running a government in Pakistan। ये आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट किया, उसमें क्या कर रहे थे आप? जब जितने भी सेंटेंसेस बोले, आई बिलीव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक, तो ये क्या स्टाइल हो गया? सब्जेक्टिव स्टाइल हो गया। सो जब आर्गुमेंट आपने करना है, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन विच यू आर कमिंग एट फ्रंट एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द अदर व्यू। So it's a kind of a role of a lawyer, just like you do it. You adopt one side of the opinion as your client, and you have to fight for it. And the purpose of argumentative essay is to convince. You are supposed to convince the reader. Analytical essay का मकसद convince करना नहीं होता, ठीक है? उस एनालिसिस में एक broad perspective
फिर देख के ये एलिमेंट्स भी हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, इसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं, रीडर की अपनी मर्जी है जिसको मर्जी वॉक कर। But the purpose of argumentative essay is to convince the reader. So your arguments are there. Okay, अब issue को समझ आ गया हमें कि issue क्या होता है, where there is a difference of opinion. अच्छा, issue समझने के बाद we have to form an opinion. एक कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन डेवलप करते हैं। अभी जो 4-5 सेंटेंसेस मैंने बोले थे, अपने आप को फ्रंट में लाके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, यही आपने ऐसे लिखते हुए करना है, राइट? यू हैव टू फॉर्म अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू डेवलप इट इन गुड वर्डिंग एंड यू हैव टू राइट डाउन। आफ्टरवर्ड्स you need to give, you have to prove it. ओपिनियन देना और उसके बाद उसकी कोई लॉजिक्स, कोई एविडेंस ना देना विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि आपने कन्विंस करना है। तो कन्विंस करने के लिए आपको प्रूफ करना होगा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स एंड रीजंस। लॉजिक्स एंड रीजन शुड बी गिवन, और ये जो लॉजिक्स और रीजंस हैं, दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय सर्टेन एग्जांपल्स। मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रूव फ्रूटफुल सिस्टम फॉर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये मेरा फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पीछे एक लॉजिक देता हूँ कि democracy actually is a matter of studies. If all the people are educated and they know about their rights, then they can plead for democracy. And in Pakistan, almost 50% population cannot read and write their names. How they know about the rule, the benefits of democracy, and how they know the importance of vote? मेरे पास एक लॉजिक है, और लॉजिक के पीछे रीजन क्या है? द पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड। अब एग्जांपल उसी लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल क्या है कि इलेक्शन की कोई रियल लाइफ एग्जांपल मैंने मेंशन करी कि फॉर सर्टेन ईयर में 2018 में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में जो वोट कास्ट हुआ किस बुनियाद पे हुआ, राइट? इफ you find over there the casting of vote on the basis of brotherhood, so it means that it is not true democracy. Okay, so इसका मतलब है before launching democracy we have to first of all create conditions. In those conditions where the democracy can prosper. Without those conditions, democracy is a flop. तो आपने एग्जाम्पल अभी सिंध की बात करते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर अप्लाई की जाएगी तो फ्लॉप ही होगी। अगर आप कानून को नहीं जानते तो ये कोई बहाना नहीं है। हाँ, तो सीखना तो जब सर एजुकेशन ही नहीं देनी तो ये रूल भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी आ गई ना सर। I think when you say that in democracy there is a right to everybody, okay, to do something, okay. In constitution, is there no reference towards the right of education for everybody? It is mentioned. तो फिर कैसे डेमोक्रेसी की बात हम करेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस को फुली अप्लाई नहीं करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज क्लॉजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर सपोर्टेड टुवर्ड्स द पॉलिटिशियंस, राइट? सो तो अब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं इन पाकिस्तान, तो क्या इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो? ये नहीं कर सकते आप, आपके मुल्क का नाम ही यही है। ये तो आपने चलो बात कर दी ना, बट आई हैव एविडेंस। क्या एविडेंस है आपके पास? इलेक्शन हुए या नहीं हुए हैं? तो इट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट डेमोक्रेसी इज देयर।
वो हम ये तो चले हमारी अपनी बात है, हम कहते हैं कि जैसी डेमोक्रेसी है इसको हम डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है ये, तो यही आर्गुमेंट चल रहा है, ठीक है। ये इसी तरह सो यू हैव लॉजिक्स एंड थ्रू एग्जांपल्स यू गिव सपोर्ट टू लॉजिक्स, there can be 2 logics, 3 logics, 4, 5 depending on the length of essay, ठीक है। आपके पास एक लेंथ है ऐसे की, उसके मुताबिक आप लॉजिक्स बढ़ा सकते हैं। हर लॉजिक को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उसको सर्टेन एग्जांपल देनी पड़ेगी, ठीक है। और असल पर्पस जो था इस सब का टू कन्विंस द रीडर, तो यहाँ पे हमारा रीडर कौन है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एग्जामिनर जो होता है उसके लिए दोनों साइड्स बराबर है, उसने तो आपका स्टाइल ऑफ आर्गुमेंटेशन चेक करना है और उस स्टाइल के अंदर भी देखना है कि आपने आर्गुमेंट करते हुए जो मैच्योर किस्म की फ्रेजेस यूज की हुई हैं, साइन कोड्स यूज किए हुए हैं, पैराग्राफ को डेवलप किया हुआ है। अगर कोई कहता है कि देयर इज डेमोक्रेसी एंड इट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान, हो सकता है उसके भी उतने ही नंबर हो 20 में से 15-16 जिसने ये कहा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। इट ऑल डिपेंड्स योर डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट, वो कंटेंट के नंबर हैं, फिर ग्रामर के अलग नंबर हैं, पैराग्राफिंग के अलग हैं, सही है। वो थोड़ी देर में अभी बता देता हूँ आपको कि इन 4 एरियाज पे हम मार्क्स डिसाइड करते हैं कितने मार्क्स देने चाहिए। ओके, सो कन्विंस द एग्जामिनर। After understanding the types of essay and concentrating कि कौन से essay हमसे concern है, ये वाले essays हमसे concern है। Essay is written in the form of passage. And passage consists of paragraphs. कोई भी essay है ना, तो वो एक passage से हम consider करेंगे, and it consists of paragraphs. So first of all we should know what is the difference in them. एक तो बात तो clear होगी कि passage consists of paragraphs. These paragraphs are the components of that essay, of that passage. इस passage के paragraphs components हैं। ये तो हो गया फिजिकल डिफरेंस का जहाँ तक एनालिसिस है या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब थॉट वाइज व्हाट इज द डिफरेंस। पैसेज डील्स विद वाइडर स्कोप, it deals with wider scope, so it means it is related to the major idea, main idea. And paragraph deals with one aspect or one element of that major idea. It deals with sub-theme, or passage deals with main theme. Overall, passage has 3 parts. Introduction, body, and conclusion. Introduction will be 1 paragraph. Conclusion will be 1 paragraph. Body can have unlimited paragraphs. Could be even 1, 2, depending on the length of essay. So, what will happen in the body? When we say in the body, actually they are all sub-themes. Introductory paragraph deals with the major idea which we have talked about. And in the body, the paragraphs, they are related with sub-themes.
Conclusion actually is the summary of the previous points in a concluding tone. In conclusion, there should never ever be a new point, which is another aspect of the major theme. Okay. Now, whenever a new aspect of main theme is developed, a new paragraph is formed. इंट्रोडक्टरी जो पैसेज में इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसमें तो मेजर आइडिया को ही रिप्रेजेंट करना है और उसके फिर आगे एलिमेंट्स होंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज दिस इज द टॉपिक टूरिज्म एंड आई हैव टू राइट एन एसे ऑन टूरिज्म. What should be in the first paragraph? There should be general discussion over tourism. What will be in the body? If I talk about selection of place for a trip, and there is another aspect, arrangements of transportation for trips. Both are different aspects. Selection of place should not be merged with. This idea should not be merged with the idea of arrangements or facilities of transportation for a trip. So facilities for transportation, if you want to write down about that, it should be in a new paragraph. Okay, so selection of place, on what basis people choose the place according to weather condition, according to their own area. If a person who lives in Murray, for him, a tour cannot be in Murray. For him, a tour can be on the plain areas, on the desert, on the seaside. Right? So it also depends on the person's local or native condition. ये सारी बातें आप किसमें कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ प्लेस के पैराग्राफ में. इसमें अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या अगर एक और एस्पेक्ट मेरे ज़हन में डेवलप हो रहा है कि benefits of tourism from medical point of view, उसमें सिलेक्शन ऑफ प्लेस एक अलग एस्पेक्ट है, तो इनको मर्ज नहीं करना. जैसे ही हम मर्ज करेंगे वो पैराग्राफिंग की मिस्टेक हो जाएगी, उससे मार्क्स करेंगे. So whenever new aspect is generated in mind regarding the major idea, a new paragraph is developed. Okay, so hopefully it is clear now. You suppose pick up 4 aspects, 5 aspects of one topic. एक टॉपिक से रिलेटेड सैकड़ों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने सब के सभी लिखने होते हैं. एक एस्पेक्ट लें और उसे अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करें, उसकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन करें, कुछ एग्जांपल्स दें, फिर उसके बाद नए एस्पेक्ट की तरफ जाएं. सिर्फ एस्पेक्ट को टच करना, 1, 2, 3 सेंटेंसेस लिखने में, उसको अच्छी तरह डेवलप ना करना और फिर नए पैराग्राफ की तरफ जाना या नए एस्पेक्ट की तरफ जाना, इट विल शो लैक ऑफ मैच्योरिटी. सो योर एसे विल बी मैच्योर इफ one aspect is properly comprehensively discussed. अच्छा, आपने 4 aspects दिए, conclusion में कभी भी नया aspect नहीं आएगा, otherwise it will not stand as a conclusion. एक तो conclusion में concluding tone होनी चाहिए, in the final analysis, to conclude, at the end, finally, इस तरह के wording हो जिसे पता चले आप conclusion दे रहे हैं. आपके जो ऐसे मेरे पास आए थे, मैंने 4 या 5 ऐसे सेट किए अभी, तो किसी ने भी कंक्लूजन नहीं दिया. कंक्लूजन के कंक्लूडिंग स्टाइल में किसी ने नहीं लिखा, एंड पे कंक्लूडिंग टोन ही नहीं आ रही थी. ओके, कंक्लूडिंग टोन के बाद जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए.
जो कुछ बॉडी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स थे उन्हीं की समरी चाहिए कंक्लूडिंग टोन में। देन योर कंक्लूजन शुड बी द कंक्लूजन ऑफ योर एसे। अगर कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट आ गया तो ये एसे का कंक्लूजन ही नहीं है, या कंक्लूजन में आपने जनरल बातें कर दी, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन में जनरल बातें की थी, जो बॉडी के एस्पेक्ट्स थे उनकी रिफ्लेक्शन कंक्लूजन में नहीं आएगी, तो फिर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन सेम डेटा हो जाएगा। सेम डेटा से मुराद नॉट वर्डिंग, मैसेज सेम हो जाएगा। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एट द एंड। स्टार्ट में भी आप टॉपिक को लेके चल रहे हैं, एंड पे आगे उसी जो उन्हीं पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं बॉडी में, उसका इन्फ्लुएंस नजर आए। राइटर की पर्सनैलिटी भी उस ऐसे में है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर आ जो एंड पे आगे उसने फील किया और उसको वो नोट डाउन करा। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट पैराग्राफ, स्पेशली जो सब थीम के पैराग्राफ्स हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, दोनों की अलग नेचर होती है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आइडिया इन जनरल स्टेटमेंट्स। Conclusion should be the end result of the main idea in specific statements, which in specific points which are the part of body as well. Okay, अब हम बात कर रहे हैं बॉडी के जो पैराग्राफ, राइट। एवरी पैराग्राफ कैन हैव, कुछ चीजें एक पैराग्राफ के अंदर हो सकती हैं। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड, वो जो भी सब थीम है, जो भी आपने एक एलिमेंट पकड़ा है मेन आइडिया का, उसका बैकग्राउंड हो सकता है। इसमें मेजर थीम का बैकग्राउंड नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सब थीम का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड होता क्या है कि आप एक बात बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल दे दूं, आपने कहना ये है कि आई प्रेफर ट्रेडिशनल म्यूजिक एज कंपेयर टू इंटरनेशनल म्यूजिक। तो आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, आप उसका बैकग्राउंड ये ले रहे हो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड। पीपल अडॉप्ट अ काइंड ऑफ म्यूजिक अकॉर्डिंग टू देयर, और पीपल चूज अ काइंड ऑफ म्यूजिक अकॉर्डिंग टू देयर own feelings, emotions, mood. But I prefer, जब आपने I prefer किया, ये असल में टॉपिक सेंटेंस है। असल में बात आपने इसीलिए करनी थी कि I prefer traditional music। तो आपने अपनी बात करने से पहले जो रीडर की थॉट्स को के लिए स्टेज तैयार किया। जैसे स्टेज तैयार हो गया कि आगे क्या कहना चाहते हैं आपने अपनी बात का, राइट। सो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। Then you give the topic sentence or thesis sentences भी हम किसे कहते हैं, thesis sentence। thesis का मतलब, thesis बेसिकली एडजेक्टिव है और थीम नाउन है, ये ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो जो भी चीज थीम रखेगी उसको हम thesis कहेंगे। A sentence which contains the theme is called thesis sentence। तो वो थीम क्या है, सब थीम है। We can have its explanation, we can give examples, we can give references, we can give quotation, we can give logics, and we give conclusion। ये पैराग्राफ के अंदर पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ, ऑब्जर्वेशन पे आएंगे वो, ऑफ कोर्स जब आप एग्जांपल दे रहे होते हैं वो ऑब्जर्वेशन की रियल लाइफ है ना, सो वी कैन से ऑब्जर्वेशन। These are possible, I'm saying, these are possible
points in any paragraph. अच्छा, ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स इधर आ गए हैं जो पैराग्राफ का एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जो कंपल्सरी पार्ट किसी भी पैराग्राफ का ना वो है thesis sentences. कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी पैराग्राफ इज thesis sentences. मैं अक्सर स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि व्हाट कैन बी लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ. स्टूडेंट्स start telling me the length of paragraph in number of words. स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि एक पैराग्राफ 60 वर्ड्स का 70 वर्ड्स का होगा. स्टूडेंट्स कहते हैं एक पैराग्राफ कोई 8, 9, 7, 8, 9 लाइन्स का होगा. पैराग्राफ इज नॉट काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स. रादर पैराग्राफ इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ thesis sentence. कोई भी एक सेंटेंस जिसके अंदर थीसिस डेवलप हुआ हुआ एक सेंटेंस पैराग्राफ का रोल अदा कर सकता है. एंड इट इज फाउंड इन मैनी बुक्स. एक मेन आइडिया जो सब थीम वाला एक आइडिया आ गया है एक सेंटेंस में किसी वजह से, चाहे टाइम की शॉर्टेज है या कोई भी वजह है, जो राइटर है ये उसको अगर एक्सप्लेन नहीं करता कुछ भी नहीं उसका देता, लेकिन दैट पैराग्राफ इज एक्सेप्टेड एज अ परफेक्ट पैराग्राफ. मे बी देयर इज अ वन सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑप्शनल. बाकी सारी चीजें ऑप्शनल हैं. आपके पास थीसिस सेंटेंस है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल है. आप थीसिस सेंटेंस देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ये पैराग्राफ भी काफी है. लेकिन उसे अच्छा डेवलप करना चाहिए. हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ टर्म यूज होते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उनको एक्सप्लेन करें. आपके पास रियल लाइफ में कोई कोटेशन है जो सपोर्ट कर रही है उसी आइडिया को जो आपने जनरेट किया हुआ. कोटेशन बुक से भी हो सकती है, प्रोवर्ब्स हो सकते हैं. कि जो आइडिया आप जनरेट कर रहे हो ये कोई प्रोवर्ब है. प्रोवर्ब किसे कहते हैं जी? कहावत कह लें या ज़र्बुल जिसे कहते हैं. ठीक है, तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या माइट इज राइट है, ये भी एक कहावत है. तो इस तरह की आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल वही जो कहावत का मेन थीम है या मैसेज है उससे मिल रहा है, तो आप उसको कोट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर आइडिया. अच्छा, अगर आर्गुमेंटेटिव स्टाइल वाला पैराग्राफ है तो लॉजिक तो फिर आनी है, क्योंकि उसमें आप एक थीम देके टॉपिक सेंटेंस देके उसको अगर आप एग्जांपल्स के लिए उसके साथ या लॉजिक के साथ सपोर्ट नहीं करते तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी. आर्गुमेंटेटिव में लॉजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑब्जर्वेशन का किसमें रोल है? वही एनालिटिकल एसे में रोल है. ऑब्जर्वेशन क्या होती है? आपकी अपनी लाइफ की एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, कोई भी सोसाइटी में कोई एग्जांपल हो सकती है, ओवरऑल पूरे कंट्री में कोई एग्जांपल हो सकती है, पूरी दुनिया की कोई एग्जांपल आपको मिल सकती है तमाम कंट्री में ये हुआ. तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन. तो ऐसे पैराग्राफ्स को डेवलप किया जाता है. ठीक है, सो वी हैव टू एडजस्ट देम हियर इन द बॉडी. Right, so one paragraph must have thesis sentence, rest of things are optional, but you should add them. अगर आपको एग्जाम्पल और मौजूद है, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दे दें. अच्छा, इधर मैंने एक और वर्ड यूज किया है कंक्लूजन. एक होता है पैसेज का कंक्लूजन, वो पूरा पैराग्राफ होता है. एक होता है सब थीम का कंक्लूजन, वो पूरा पैराग्राफ तो खैर नहीं है. आपके पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें आप क्या यूज करते हो? सो, thus, therefore. इसका मतलब है जो कंक्लूजन सब थीम का होगा वो टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, फाइनली, इस तरह के वर्डिंग से नहीं होगा. जब कहते हैं ना सो, thus और therefore, वो बेसिकली आपने एक पॉइंट जो एज अ वन एलिमेंट ऑफ मेजर थीम था उसको डेवलप कर चुके हैं, अब उसको लिखें सो करके, ठीक है, thus करके. So that is called conclusion. Conclusion of paragraph is different and conclusion of passages course.
राइट। इनके अलावा क्या चीज़ें, इनके अलावा ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा है, आप मेच्योर कितने हैं, फिर लैंग्वेज वोकैबुलरी सब कुछ हाँ, लेकिन वो बाज़ दफ़ा कंटेंट अच्छा होता है लेकिन उसे सही तरतीब के साथ मेंशन ही नहीं किया होता। एक ऐसे मैं चेक कर रहा था जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में तकरीबन 1.5-2 पेज तक बात ही नहीं हुई, उसके बाद असल बात शुरू हुई थी। क्योंकि हम हर एक चीज़ जो लिखी गई है इंग्लिश में, उस सब ये नहीं कि वो कंट्रीब्यूटर है टू योर टॉपिक, टू योर सीन। सो इट आल्सो हैपेंस ओवर देयर, राइट। लेट मी चेक द टाइम। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे वो है मार्किंग क्राइटेरिया, कि जब भी हम कोई भी ऐसे मार्क करते हैं तो हमारे ज़हन में कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम नंबर दें, वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि उनके ऊपर काम करते हुए आप वो मिस्टेक्स खत्म करें। If it is writing, so there is content, there is grammar, there is cohesion and coherence, there is level of vocabulary. अच्छा, कंटेंट क्या है आपका? मैसेज, डेटा, मटेरियल, कितना फोर्सफुल, कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, उसके समझने 25% मार्क्स। बस 20 नंबर का ऐसे है तो 5 नंबर उसके होने होंगे। फिर है ग्रामर, ग्रामर में एक वर्ड ग्रामर है, फिर फ्रेज ग्रामर है और सेंटेंस ग्रामर। और फिर हम ग्रामर में ये भी चेक करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखे हैं। सिंपलिसिटी के ऑफ कोर्स कम मार्क्स दिए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जब 2-3 आइडियाज आप एक ही सेंटेंस में डालते हैं थ्रू कनेक्टर्स डाल के, ऑल दो यूज करके, व्हेन का, इफ क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंसेस, वो उसकी ज़्यादा वर्क करती है। सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। सो वी have grammar, it means at word level, phrase level and sentence level. और phrase जैसे हम पढ़ रहे हैं कि phrase एक short भी हो सकती है, noun phrase को lengthy कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा use of adjective कैसे आप डालेंगे, adverb भी साथ adjective को explain कर रही होगी, तो phrase को कितना आप complex बनाते हैं, भेजते हैं। word से मुराद है कि the use of word properly in the group of other words, वहाँ पे adjective है तो adjective का रोल यूजर अदा कर रहा है। वर्ड ग्रामर, फ्रेज ग्रामर एंड सेंटेंस ग्रामर, इसका भी 25% वेटेज है। देन कोहेशन एंड कोहेरेंस, जी स्टिक टू आइडियाज कह सकते हैं आप। इसमें टेक्निकली डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो ऑफ थॉट। अच्छा, एक होता है प्लॉट, किसी भी ड्रामे का, मूवी का प्लॉट होता है। हम कहते हैं कि पहले ये होना चाहिए, ये एंड वाला सीन होगा, दरमियान में एक पीक पॉइंट आता है। इसी तरह ऐसे में भी हम अपलोड करते हैं, जो आपको चीज़ें बताई ना कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन लगे, उस उधर आगे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आपने बता दिया पहले पैराग्राफ में, वो इंट्रोडक्शन ही नहीं लग रहा। बॉडी है तो बॉडी ही लगे, और बॉडी के अंदर अगर 4-5 पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, हर एक पॉइंट सेपरेटली हो, मिक्स अप ना हो, मर्ज ना हो, राइट? तो इसको हम कहते हैं कोहेरेंस। The paragraph should be placed as their requirement, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ही पैराग्राफ है।
हमें लास्ट पे कंक्लूजन चाहिए, अब कंक्लूजन दे ही नहीं रहे। आपने जो बातें भी अभी हवा में बिखर रही हैं, आप उनको एंड पे आगे बाउंड कर ही नहीं रहे। एक एनालिसिस जो आपने किया था उसको एक रिजल्ट तक लेके आ ही नहीं रहे, वो लाना है। लास्ट पैराग्राफ में उसकी रिक्वायरमेंट दरम्यान मेरा बॉडी है, तो बाज़ दफ़ा होता है कि एक बेसिक एलिमेंट है, फिर उसके बाद एडवांस्ड है, फिर एडवांस्ड है, उनके आपस में भी तरतीब होनी चाहिए। आप अगर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक को पहले डिस्क्राइब करते हो और जनरल म्यूजिक के जो रिक्वायरमेंट्स को बाद में बयान करते हो, सो दैट इज नॉट लॉजिकल, दैट इज नॉट इन सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस ऑफ थॉट है, जिसे आप कह लें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, वो है कोहेरेंस। इतनी बात बताइए अभी तक। फिर है कोहेशन। कोहेशन किसे कहते हैं? लॉजिकल सीक्वेंस विद इन पैराग्राफ। कोहेरेंस क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ का एक सीक्वेंस होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी की डेवलपमेंट, कंक्लूजन। फिर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस विद इन पैराग्राफ। सीक्वेंस कैसे आता है? पीछे आपने एक सिंगुलर यूज किया हुआ है और आगे आप देर की बात कर रहे हो। सिंगुलर है, ही होना चाहिए अगर तो मेल है, देयर तो प्लूरल के लिए होता है। तो सेंटेंसेस का आपस में रब्त नहीं है। पीछे जो आपने बात की है, अगले सेंटेंस में आप रेफर तो वही कर रहे हो, लेकिन रॉन्ग वर्ड्स के साथ, रॉन्ग टर्म्स के साथ। इसको हम कोहेशन कहते हैं। अपनी एक ऐसे में चेक कर रहा था, वहाँ पे सेल्फ कंट्राडिक्टरी आई है स्टेटमेंट, वो मैंने लिख लिया होगा। तो वो असल में वो रब्त नहीं रहता। विद इन पैराग्राफ वी हैव टू वर्क ऑन फ्लो, दैट इज कॉल्ड कोहेशन, एंड इट कम्स। ये कैसे आता है? अगर आप अच्छा यूज ऑफ प्रोनाउन करते हो, ठीक है, प्रोनाउन का इस्तेमाल इसके लिए होता है। फिर प्रोनाउंस के साथ कुछ टर्म्स है, ये भी प्रोनाउन ही है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक तो है ना पर्सनल प्रोनाउन, ही, शी, इट, आई, यू। तो इसके बाद जितने दूसरे भी प्रोनाउन के चाहे वो डेमोस्ट्रेटिव हो, पॉसेसिव हो, वो एक्चुअली कोहेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये होने चाहिए, इसके भी 25% मार्क्स। सीक्वेंस, ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ पैराग्राफ, विद इन पैराग्राफ ऑफ सेंटेंस, कोहेशन, ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ्स इन द पैसेज। अच्छा, लेवल ऑफ वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी में दो चीज़ें चेक करते हैं हम। एक तो पहले तो लेवल हाई होना चाहिए कि एक ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं, और से डिफिकल्ट वर्ड्स होने चाहिए। अननाउन, डिफिकल्ट तो खैर कोई वर्ड नहीं होता, या तो हम जानते हैं या नहीं जानते, आप कह लेंगे। जो अनकॉमन वर्ड्स हैं उनको यूज करें, कॉमन जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको ना यूज करें। आप कहते हो मैनी बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स। तो मिलियन एक क्या है टर्म? ये जो इडियोमैटिक यूज है, ये सारा क्या करता है? हमारी वोकैबुलरी को इन्हांस करता है। तो एक आप क्या करें इसमें, अनकॉमन भी एक खास वर्ड नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी ज़्यादा बेटर है। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हो, लेवल उनका हाई है। प्रोफेशनल हो गए लैंग्वेज से आप डिपार्टमेंट में। हाँ, नहीं, जो आपका डिपार्टमेंट नहीं, जो टॉपिक है, टॉपिक है वही स्पेसिफिक। कोविड-19 की बात हो रही है तो उसी फील्ड से मेडिकल वाले का बिल्कुल ये बात आती है। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वो इसी में है, हम उसी में कंसीडर करेंगे कि 3, 4, 5 वर्ड्स के लिए। मतलब हम कहते हैं कि द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्टर। तो आप अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स की बिना आप एक वर्ड यूज कर रहे हो एम्बीडेक्स्टर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये कोई आप जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो मैंने आपको रेफर किया उसमें ये मौजूद है, वो आप लिस्ट देखें, उसमें से जो आपको लगते हैं कि ये जो है ना 30-40 वर्ड्स ये मैंने लाजमी याद करने हैं, और किसी भी ऐसे में अगर 4-5 भी उनमें से यूज़ हो गए तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो वो आप इस तरह बना दें। फिर है कि वैरायटी ऑफ वर्ड्स।
एक ऐसे मैं देख रहा था कि उसमें एक पेज के ऊपर ही एक टर्म या फ्रेज कोई 7-8 दफ़ा यूज हुई है मुख्तलिफ सेंटेंस, मतलब उसकी जगह पे सिनोनिम्स आ सकते हैं। तो यूज ऑफ सिनोनिम्स बेटर। इससे क्या एग्जामिनर फील करता है कि ही हैज लैक ऑफ वोकैबुलरी, कि वो वही बात आप दूसरे अल्फाज में बताएं। फिर स्पेलिंग, मुश्किल वर्ड लिखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गलत लिखना उतना ही खतरनाक है। आप शो कर रहे हो कि आपको वर्ड आता है, लेकिन जैसे स्पेलिंग गलत होंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको ये वर्ड नहीं है। आप खुद ही अपनी इग्नोरेंस को दे रहे हो। अगर आपको वर्ड के स्पेलिंग श्योर हैं तभी लिखें, श्योर नहीं है तो फिर ना लिखें, उसका कोई सिंपल वर्ड लिखें। हाँ, डिफिकल्ट लिखना बेहतर है, लेकिन अगर वो गलत हो जाए वो उतना ही डेंजरस। इससे मुराद क्या है? वी नीड परफेक्शन। So there are also 20%, 25% weightage for this area. ग्रामर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी हम सीखते हैं, पेरो वर्ड्स भी, इडियम्स भी। आप ऐसे लिखना शुरू कर दिए, आप उन पेरो वर्ड्स को भी कहीं ना कहीं यूज़ किया करो। जो मुश्किल वर्ड होता है, एवोकेशन जैसे कल हमने देखा था, उसकी जरूरत पड़े तो उसको यूज़ करो। रिवेंज कहीं देखा है, ये इस तरह के वर्ड्स हैं, ये इडियम्स हम जो पढ़ते हैं उनको यूज़ करो। ये लैंग्वेज स्किल है, और स्किल कैसे आती है हमारे पास? थ्रू प्रैक्टिस। इसका मतलब जो वर्ड सीखते हैं आप ऐसे लिखते हैं, उनको अप्लाई करें, अप्लाई कर कर करके फिर आप इम्प्रूव करेंगे। इट्स नॉट वन डे प्रोसेस। अभी तो आज सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखे हैं कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर या पैराग्राफ कैसे डेवलप किया जाता है, थीम क्या है, मेन थीम क्या है, सब थीम क्या है, उनकी किधर किधर प्लेसमेंट, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपके एसेस में भी देखी थी, आपको साइन पोस्ट जो है ना, वो या तो आपको पता नहीं है या पता है लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता। साइन पोस्ट क्या होते हैं कि जैसे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो मोर ओवर, फर्दर मोर, इस तरह का यूसेज किसी ने भी नहीं किया हुआ था। कंक्लूजन देते हुए लग रहा है कि आपने आखिरी पैराग्राफ लिखा है, आप कंक्लूजन ही दे रहे हो लेकिन कंक्लूडिंग वर्ड ही नहीं है उसमें, तो ये शो कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स उधर मिसिंग हैं, स्पोर्टिव वर्ड्स उधर मिसिंग हैं, कंट्रास्ट के जो वर्ड्स हैं, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, ऑल्दो, वो मतलब जिसको हम साइन पोस्ट कहते हैं कि कहाँ आप किसी आइडिया पे टर्न ले रहे हो, ठीक है, वो भी नहीं थे अभी तक। तो मुझे आप समझ लें 5 या 6 मैंने एक्सेस किए हैं, तो उसमें रेयरली अगर किसी ने यूज़ किया तो वो भी खुद ही हो गया होगा, मर्जी से। तो एक तो वो मुझे आपको बताने हैं कि वो साइन पोस्ट क्या है, उनके क्या यूसेज है और कैसे हमारी थॉट में वो एक निखार ले आते हैं, ठीक है। वो भी क्योंकि आपके अगर आप वो ऐसे ना मुझे लिख के देते मुझे इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, आई थिंक इट्स लास्ट क्लास इन दिस वीक। अब नेक्स्ट वीक में हमने मुलाकात करनी है। आपकी राइटिंग जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कुछ आपने लिखा है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ऐसे लिखा है, मैंने 3 टॉपिक्स दिए थे। एक था इकोनॉमिक चैलेंजेस थ्रू पाकिस्तान, COVID-19 and the role of Pakistan government, democracy is the only solution। जिन्होंने इसमें से एक टॉपिक पकड़ के ऐसे लिखा था वो कोई अब इन बाकी ये तीनों बहुत करंट इश्यूज हैं, और मैं अभी बता रहा हूँ उनमें से एक में आ जाना है, तो करंट इश्यूज में से एक लाजमी आता है, ठीक है। तो बरत मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक तैयार करो, लेकिन कह रहा हूँ कि इन तीनों को लाजमी करो और भी हम करेंगे। तो अभी जिन्होंने सिर्फ एक टॉपिक लिया है, वो जो दूसरे टॉपिक्स रह गए उनमें से एक टॉपिक पकड़े और उसके ऊपर ऐसे लिखें। और आई कैन एक्सपेक्ट जिन्होंने पहले ऐसा लिखा था, आज का लेक्चर लेने के बाद इम्प्रूवमेंट आएगा ऑटोमेटिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।